Yes. Hallelujah. Thank you, King of Glory. Bless you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 धन्यवाद धन्यवाद यीशु मसीह आपका धन्यवाद. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus of Nazareth. 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 Lord, we bless your name. Lord, we bless your name. Lord, we bless. Lord, we come to pray for our nation, India, Lord. We pray that you will have mercy on our country, Father. That you will send your angels to move, Father. That you will command this vicious virus to stop in its track, Father. This demonic entity that is scourging people, Lord, that you will command it to cease in Jesus' name in India. We pray for Italy, Father. Many, many souls have just vanquished. Many precious lives have been claimed by this deadly virus in Italy, Lord, where even the government is giving up. The doctors, many, many doctors, they lost their lives in this epidemic, in this pandemic. We pray for Italy. We pray for India, Lord, that you will have mercy. You will have mercy. You will have mercy. You will have mercy. You are compassionate. You are kind. You are merciful, God. You are slow to anger. You are abounding in love, Lord. Lord, you are slow to anger. You are abounding in love. You don't take pleasure in annihilating the wicked, but your delight is that they may repent and turn to you and come to the knowledge, saving knowledge of the Lord Jesus Christ. We intercede for India. We intercede for Italy, Father. Father, we pray, प्रार्थना करें यीशु मसीह हमारे देश के लिए, इटली के लिए हम मिलके प्रार्थना करते हैं. यीशु मसीह, तेरा स्कर्ज दूर हो, तेरी दया उतरे प्रभु, तेरी करुणा उतरे, तेरा एंगर प्रभु, तेरा क्रोध दूर हो जाए. यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं मिलके. यीशु मसीह हम मिलके प्रार्थना करते हैं इन दोनों राष्ट्रों के लिए. प्रभु जी, हम प्रतिदिन प्रार्थना में संलग्न हैं यीशु नासरी, ताकि तू दया करे. प्रभु, हम आइडेंटिफाई करते हैं उनके गुनाहों से, अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं प्रभु, सामूहिक रीति से मिलके रिपेंट करते हैं प्रभु, तेरे आगे पश्चाताप करते हैं कि तू यीशु मसीह के क्रूस पे बहाए गए पवित्र और जलाली रक्त को देखेगा. यीशु मसीह के क्रूस पे बहाए गए पवित्र और जलाली खून को देखेगा, और तू अपनी वाचा को स्मरण करेगा, दया और करुणा की वाचा को स्मरण करेगा, और भारत को और इटली को क्षमा करेगा. प्रभु, सब प्रार्थना करें. हालेलुया. हम विश्व के सारे राष्ट्रों के लिए प्रार्थना करते रहेंगे. आज हम विशेष करके इटली और इंडिया के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु. जहाँ जहाँ हब्स हैं इस एपिडेमिक की, वेयर जस्ट ब्रेकिंग आउट दोज हॉट स्पॉट्स, दोज हब्स, hotspots. Father, that this virus will cease in Yeshua's mighty name. Father, you will give discernment and wisdom to the doctors, to the nurses. Even you would protect them, that they will not get infected, that they will not get contaminated, Father. Father, we pray for many poor people in this country who are daily wages worker, who work every day and earn bread and butter for their family. They have to sit back home, Father. We pray, Father, that you will open your heavenly resources and you will provide them. Father, because of Jesus, because of Jesus' love, because of Jesus' covenant and atonement on the cross, you will have mercy. Hallelujah. तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्य. प्रार्थना करें आप भी, परमेश्वर के सामने झुक जाएं, प्रार्थना करें भारत के लिए, प्रार्थना करें इटली के लिए. प्रे, दुआ करें परमेश्वर से, उसकी दया उसे स्मरण कराएं, उसकी करुणा उसे स्मरण कराएं, उसकी प्रतिज्ञा, उसकी वाचा उसे स्मरण कराएं. यीशु मसीह का लहू स्मरण कराएं. जब हम परमेश्वर को यीशु मसीह का लहू स्मरण कराते हैं, यीशु मसीह की मृत्यु स्मरण कराते हैं, परमेश्वर का हृदय दया से भरता है, करुणा से भरता है, क्योंकि उसने हम सब के पाप, पूरे जगत के पाप, कौमों के, मुल्कों के, राष्ट्रों के पाप पहले ही यीशु मसीह के ऊपर डाल दिए, और यीशु मसीह के रक्त ने पूरी कीमत अदा कर दी है. हालेलुया. दया करें कि लोग तौबा करें,
लोगों को स्टबन हार्ट नहीं बल्कि कोमल हृदय मिले। लोग जब अपने घरों में बैठे हैं, लोग जाने कि परमेश्वर का प्रकोप है और तेरे आगे अपने आप को हलीम करें, दीन करें। प्रभु ऐसा काम करें यीशु मसीह के नाम में। प्रभु यीशु मसीह के नाम में ऐसा काम करें। यीशु मसीह के नाम में ऐसा काम करें। प्रभु यीशु मसीह के जलाली नाम में ऐसा अद्भुत काम करें। हालेलुया। दुआ करें भाई और बहनों, प्रार्थना करें। हम आत्मा में एक होकर प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह की कलीसिया उसका आध्यात्मिक शरीर है जो पूरे संसार में फैला है। वो ना तो लहू ना मांस से बल्कि परमेश्वर की इच्छा से उत्पन्न हुए हैं और उनका छुटकारा सोने चांदी जैसी नाशवान वस्तुओं से नहीं वरन मेमने के बहुमूल्य रक्त के द्वारा हुआ है। प्रार्थना करें। आपके परिवार के जो सदस्य अभी यीशु मसीह को नहीं जानते, उनकी मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। वो प्रभु को जाने, प्रभु के चरणों में आए। फादर, I pray in Yeshua's mighty name that you will speak to us from your word for a very brief meditation. And Father, that your Spirit will make us passionate to pray. Lord, you will remove the spirit of prayerlessness from off your people, and you will give them a fervent spirit, Father, and a passionate heart to pray for the nations of the earth. Hallelujah. यीशु मसीह तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा हो। हालेलुया। इन जीसस नेम, आमेन। हालेलुया। मैं आपको पिछले दिनों में साम 91 से और रेवलेशन चैप्टर 6 से बता रहा था, और पिछले 2-3 सेशन में हमने पेल हॉर्स के ऊपर बात की। चौथा जो घोड़ा है उसका नाम है थैनाटोस ग्रीक में, और उसके पीछे जो आ रहा है उसका नाम है हेडीज, और वो जो घोड़ा है उसका भी नाम बताया गया। बाकी 3 घोड़ों का नाम नहीं बताया गया, ना 3 सवारों का नाम बताया गया, लेकिन चौथे का नाम स्पेसिफिकली बताया गया। उसका नाम पेल हॉर्स, सिकली ग्रीन कलर का, लेकिन उसका नाम ग्रीक में है क्लोरोस। क्लोरोस वो शब्द जहाँ से इंग्लिश का वर्ड निकलता क्लोरोफॉर्म। 4th हॉर्स जब आता है, क्लोरोफॉर्म का मतलब केमिकल, बायोलॉजिकल केमिकल वॉर जो पृथ्वी पे आने वाली है। भाइयों बहनों, आपको मालूम, इस संसार में पॉलिटिशियन, संसार में फिलोसोफर, इकोनॉमिस्ट दुनिया के लोगों को क्या कहते हैं? वो दुनिया के लोगों को कहते हैं कि संसार बढ़िया हो रहा है, बढ़िया दुनिया होगी, वर्ल्ड इज़ गोइंग टू बी अ ग्रेट प्लेस, ग्रेट थिंग्स आर गोना हैपन। लेकिन मैं आपको बताऊं, यीशु मसीह ऐसा नहीं कहते। यीशु मसीह और परमेश्वर का कलाम कहता है ये दुनिया बुरे से बद से बदतर होती जाएगी। थिंग्स आर गोइंग टू गेट वर्स विद ईच पासिंग डे। संसार में पॉलिटिशियन, दुनिया के बुद्धिजीवी, फिलॉन्थ्रोपिस्ट, वो कहते हैं कि संसार में बहुत बड़ा पीस आने वाला है, शांति आने वाली। लेकिन यीशु मसीह ऐसा नहीं कहते। यीशु मसीह कहते हैं लड़ाइयाँ आ रही हैं, मेजर बैटल्स आ रही हैं। और संसार के अंदर जो दुनिया को निर्माण करने वाले नेता, वो लोगों को क्या प्रॉमिस करते हैं कि संसार बहुत प्रॉस्परस होगा, बड़ी तरक्की, बड़ी खुशहाली होगी, अच्छे दिन आएंगे। लेकिन आपको मालूम परमेश्वर का वचन क्या बताता है? परमेश्वर का वचन बताता है महामारियाँ आएंगी, जो भी एक आ रखी है, अकाल पड़ेंगे, कलामिटीज आएंगी, सोड आएगी पृथ्वी के ऊपर। भाइयों और बहनों, बाइबल एक अलग तस्वीर खींच रही है। पढ़िए प्रकाशित वाक्य, जागिए, चेतिए, परमेश्वर के सच्चे कलाम के साथ जुड़िए। परमेश्वर का वचन बताता है मनुष्यों के हृदय कांपेंगे बिकॉज ऑफ द फियरफुल जजमेंट दैट इज गोइंग टू कम अपॉन द अर्थ। फियरफुल जजमेंट जो पृथ्वी के ऊपर आएगी। इसलिए मैं आपको यीशु मसीह के नाम में ये प्रेरणा देना चाहता हूँ कि आप प्रकाशित वाक्य पढ़ें। अभी जितने दिन आप लॉकडाउन में हैं, इन दिनों में प्रकाशित वाक्य, बुक ऑफ रेवलेशन को फिनिश करें, 1st चैप्टर से पढ़ना शुरू करें। स्टार्ट रीडिंग रेवलेशन। आपको मालूम, बुक ऑफ रेवलेशन हैज सच अनकैनी ऑडेसिटी टू से रीड मी, फॉर जस्ट बाय रीडिंग मी यू विल बी ब्लेस्ड। एक ही ऐसी पुस्तक पूरी बाइबल में जो ये कहती है कि पढ़ने और सुनने वाला भी बरकत पाएगा। हालेलुया।
केवल पढ़ने और सुनने से बरकत मिलेगी। और आपको मालूम, अगर आप प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय का पहला वचन पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है द रेवलेशन ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के चेहरे का प्रगटीकरण है। यीशु मसीह का चेहरा उजागर है प्रकाशित वाक्य में। यानी द रेवलेशन ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट विच गॉड द फादर गेव अनटू हिम, जो यहोवा पिता ने यीशु मसीह को दिया ताकि यीशु मसीह अपने सेवकों को दे। पढ़िए पहला वचन, वहां लिखा है प्रकाशित वाक्य यीशु मसीह के चेहरे का उजागरीकरण है, जो स्वर्गीय पिता ने यीशु मसीह को दिया ताकि यीशु मसीह अपने चेलों को दे। प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय के अंदर पढ़ के देखिएगा। हालेलुया। मैं एक्चुअली प्रकाशित वाक्य के 6 चैप्टर में हूं, जहां पे मैं आपको बता रहा था चौथे घोड़े के विषय में। पहला घोड़ा जो मैंने आपको बताया वो सफेद रंग का है। पहला घोड़ा प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय के पहले वचन में, ये एक मिस्टेकन आइडेंटिटी है। व्हाइट हॉर्स पे आ रहा है और उसके हाथ में बो है। आपको मालूम ये कौन है? ये इम्पोस्टर है, कॉन्टरफीट है जीसस क्राइस्ट का, मसीह विरोधी है। जो व्हाइट घोड़े पे आ रहा है बैठा, उसके घोड़े की टापों की आवाज अब सुनाई दे रही है। वो शीघ्र प्रकट होगा। इस समय जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूं, रोमन कैथोलिक चर्च के अध्यक्ष पोप, डीप स्टेट्स, इलीट, सीक्रेट सोसाइटीज, फ्री मिशनरी, ये सभी लोग मिलके क्या तैयारी कर रहे हैं? ये तैयारी कर रहे हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लाने की। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लाने की तैयारी की जा रही है। नई दुनिया, मालूम आपको, बड़े बड़े लोग, इलीट लोग, बहुत धनी लोग इस दुनिया, नई दुनिया को बसाना चाहते हैं। और इस समय एक डी पॉपुलेशन एजेंडा चल रहा है। डी पॉपुलेशन एजेंडा में मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लोगों को मारा जाएगा सिस्टमेटिकली। वैक्सीनेशन के थ्रू मारा गया है। इस पर रिसर्च हो रही बहुत। जो वैक्सीनेशन की जाती थी वो मनुष्य के जीवन को छोटा करने के लिए की जा रही है, ताकि लॉन्ग स्पैन तक बंदा जीवित ना रहे। अभी ये जो कोरोना वायरस है, ये ओल्डर एज को, अमेरिका में रिसर्च हो रही है, जो लोग 60-70 साल की उम्र के हैं उन लोगों को फिनिश कर रहा है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी कंप्रोमाइज होती है। तो सब चीजें शैतानी दुनिया के ऑर्डर से चल रही हैं। पोप मुलाकात कर रहे हैं जो अध्यक्ष हैं बुद्ध धर्म के। दुनिया के सभी धर्मों को इकट्ठा कर रहे हैं वो। पॉलिटिशियन, इकोनॉमिस्ट, फिलॉन्थ्रोपिस्ट, बड़े बड़े लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तैयारी हो रही है। संसार में बहुत सी घटनाएं घट रही जो आपको मालूम नहीं। मैं सुन रहा हूं खबरें, लोग यूएफओज देख रहे हैं उतरते हुए। दुनिया के अंदर बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्रंच आने वाला है। वचन बता रहा है, क्या बता रहा है वचन? पहला हॉर्स, व्हाइट हॉर्स पे वो आएगा, और वो किस समय आएगा? जब पृथ्वी पे बहुत कयास होगा, बुरा हाल होगा। पॉलिटिशियन से संभलेगी नहीं बात, इकोनॉमिस्ट से संभलेगी नहीं बात, बुरे आयाम में दुनिया पहुंच जाएगी। तब वो पेश होगा और दुनिया को शांति की उम्मीद मिलेगी उससे। दुनिया के सब धर्म इकट्ठे हो जाएंगे, उसे रिसीव करेंगे। और वचन में लिखा है कि वो मार्क देगा यहाँ पे या राइट हैंड पे। आपको मालूम, अभी आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, एजेंडा ID 2020। बहुत बड़ा प्रोग्राम है, यूनाइटेड नेशंस, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन मिलकर चला रही है कि एक ID बनेगी अब पूरी दुनिया की। अब उसका एक बहाना मिल गया है। अभी ये वायरसेस आ रहे हैं, इनकी वैक्सीनेशन तैयार होगी, लेकिन वो वैक्सीनेशन उसी छोटी बायोचिप के अंदर डाली जाएगी। यहाँ पे आपके लगा दी जाएगी, यहाँ पे उसके अंदर आपकी सबकी वैक्सीनेशन हो। अभी मैं समाचार सुन रहा था कि ये कहा जा रहा है, बिल गेट्स वाज सेइंग vaccinations that are going to come against all these kind of viruses that are shooting against mankind, they would be capsuled in a microbiochip that would be inserted in human body, and all essential IDs and all financial
would be embedded in that biochip. तो हम उसके बिल्कुल मुहाने पे बैठे हुए हैं. We are already there. तो वचन में क्या लिखा है? प्रकाशित वाक्य बड़ी अद्भुत किताब है. इसको लोग पढ़ते नहीं हैं क्योंकि पासवान लोग प्रकाशित वाक्य सिखाते नहीं. प्रकाशित वाक्य में 404 आयतें हैं. इसके अंदर 800 एल्यूजन्स हैं. Revelation has 404 chapters and it has over 800 allusions from the Old Testament. If you don't understand the Old Testament, you cannot comprehend the New Testament. You have to study Zechariah, you have to study Ezekiel, you have to study Daniel, you have to study Torah. Then you will be able to grasp book of Revelation. It's not a riddle. It's not an enigma. It's a very simple book. The Holy Spirit can open up, decipher करेगा पवित्र आत्मा आपको ये पुस्तक. अगर आप सचमुच सीखना चाहते हैं. प्रकाशित वाक्य में आप पहले अध्याय में देखते हैं. In first chapter, you see Jesus Christ of Nazareth, the risen King of glory in Revelation 1. Hallelujah, the King of all kings, the eternal God. He will ever live in human body, but that body is glorified. That is the kind of bodies we all will get. You know, all other religions teach that our bodies have no value. Our bodies will dissolve. We are just like a vapor, and we will dissolve. Their theology is theology of annihilation. A drop is come out of the ocean, will go back to the ocean. But Bible teaches that we will inherit incorruptible, glorified bodies. Hallelujah. You all will have a glorified body, and we will live in that glorified body billions into billions into billions into billions of years eternally, and we will have the same life. You know, Paul the Apostle uses two distinct words to denote life in his writings in New Testament. There is a word for life which is in Greek bios, from where you get the English word biology. Paul talks about this life which we have received from the womb of our mother. The life that was conceived in the womb of the mother. He said they were not born of the flesh and blood. The life that came through flesh and blood is bios. But Paul talks about another life which is much higher, much greater. The life that never began and the life that shall never end. The life that God is living eternally in heaven. The same life we will receive. We have already received it residing in a spirit, but we will receive that life to the fullest measure. Hallelujah. That's Zoe life. Zoe, Z-O-E, Z-O-E. Zoe, जो जीवन परमेश्वर जीता है, वो जीवन हम जिएंगे. In Revelation 1, you see glorified Jesus. He is walking in the midst of the candlestick. And Jesus is walking in the midst of the candlesticks. Who are the candlesticks? The church of the Lord Jesus Christ on the earth is the candlestick. You are the light of God. Israel was the light of Yahweh. Israel was supposed to enlighten this dark world. Israel was the city on the mountain top. Prabhu ne, God has made the church, the body of Jesus, the lighthouse. Hum hai wo candlestick, and Jesus is walking in the midst of the candlestick. And then in the following chapter, we see that Jesus, after he looks at those candlesticks, he makes John write letters, personal letter to those 7 churches. और आपको मालूम, you know, nearly 6 out of those 7 churches were found lacking, and Jesus reprimanded those 6 churches, barring just one, Church of Smyrna. And he made John write personal letters. They are very profound, very powerful and prophetic letters
Jesus personally made John write those letters. You must study those letters. When in second and third chapter, disseminated to the churches, message is gone out. Church is there on the earth. पृथ्वी पे है कलीसिया. लेकिन आपको मालूम फोर्थ चैप्टर में क्या होता है? अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, इफ यू लुक केयरफुली, Revelation chapter 1 verse number 19, Jesus dictates something to John the revelator to write to the churches, and he says three things. He says the things that you have seen, that is chapter 1, the things that are, when John is writing, those are 7 churches, chapter number 2 and chapter number 3, and then he says the things that shall hereafter be, जो चीजें इस होंगी. 3 सेगमेंट में बांट दिया उसने. So chapter 1 is the things that you have seen, that's the glorified vision of the Lord Jesus Christ, and then that time John is writing those 7 epistles. Then Jesus says things which are the churches. Then Jesus is saying the things that hereafter be. Metatuta, the Greek word, वो शुरू होता है chapter 4 से chapter 19. From chapter 4 to chapter 19, chapter 1, then chapter 2 and 3, then chapter 4 to chapter 19. 3 segments में ये बटा हुआ है. chapter 4 में, chapter 3 में आपको मालूम आखिरी वर्ड है जीसस के. in chapter number 3, the last verse is Jesus' last word. He says, he who has an ear, let him hear what the Spirit is saying to the churches. और जो आखिरी कलीसिया है, आपको मालूम यीशु मसीह कहाँ खड़े हैं? यीशु मसीह द्वार पे खड़े हैं बाहर, और क्या कर रहे हैं? खटखटा रहे हैं. अंदर नहीं है वो. कलीसिया के अंदर पादरी साहब अपना प्रोग्राम कर रहे हैं, क्रिश्चियन ईसाई अपने प्रोग्राम कर रहे हैं. यीशु मसीह बाहर खड़े हैं और वो खटखटा रहे हैं. कोई भी व्यक्ति घर के अंदर होके दरवाज़ा नहीं खटखटाता. व्यक्ति दरवाज़ा तब खटखटाता है जब घर वालों ने उसे अंदर आने की अनुमति नहीं दी है. ये आखिरी कलीसिया लौदीकिया की, और वो दरवाज़ा खटखटा रहा है और वो कह रहा है दरवाज़ा खोलो तो मैं अंदर आऊँगा. यीशु मसीह कह रहा रिपेंट, रिपेंट. There is a false hyper grace teaching that has swept all over the world, that has deluded Christians. That's corrupt, false teaching. Jesus is calling the church to repent. He is saying, repent. Open the door, let me in. मैं आऊँगा और तेरे साथ भोजन करूँगा. हालेलुया. और आपको मालूम उसके बाद क्या होता है? तीसरे चैप्टर की, 4th चैप्टर की पहली वर्स में क्या लिखा है? आफ्टर दीज थिंग्स, ध्यान से पढ़िएगा, ए डोर वॉज ओपन इन हेवन. इन घटनाओं के बाद स्वर्ग में एक दरवाजा खुला. आपको मालूम ये कौन सा दरवाजा है? जब आदम और हवा ने पाप किया तो यहोवा परमेश्वर ने उन दोनों को अदन के बाग से बाहर निकाल दिया. When God ushered Adam and Eve out of the Garden of Eden, the door was shut, and a sword came there, flaming sword was moving to protect the entry. The door was closed. Here in Revelation chapter 4, verse number 1, the door is open. And the door is open in heaven. क्योंकि कलीसिया उठाई जाने वाली है, और कलीसिया उठा ली गई. तीसरे चैप्टर के बाद प्रकाशित वाक्य में कलीसिया पृथ्वी पे नहीं है, कलीसिया स्वर्ग में है. हालेलुया. 4 चैप्टर से लेके 19 चैप्टर तक किस वाक्य, किस घटना के विषय में पूरे प्रकाशित वाक्य में लिखा गया है? डैनियल नबी की पुस्तक 9 अध्याय के 26 वचन. 70th week of Daniel, from Revelation chapter number 4 till chapter number 19, all that John is seeing is the 7th week of Daniel, the period of upon the earth. लेकिन उससे पहले कलीसिया उठा ली गई है. हालेलुया. और आप जब 4th चैप्टर पढ़ते हैं तो 4th चैप्टर में क्या है भाई और बहनों? हालेलुया. इसके 4th चैप्टर के अंदर सबसे पहले
थ्रोन ऑफ गॉड है, परमेश्वर का सिंहासन है, और परमेश्वर के सिंहासन के आगे 24 और सिंहासन है. देयर इज थ्रोन ऑफ गॉड, and encircling the throne of God there are 24 thrones, and there are 24 chancellors sitting on the thrones. They are kings and priests, 24 elders, and there are 7 lamps. Now see, 7 lamps, they have moved from chapter 1 into chapter 4. Hallelujah. Sorry for the disconnection. I'm extremely sorry for the disconnection. Kindly get back. Let me finish. Hallelujah. वापिस आइए, हम वचन को पूरा करें. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sorry it got disconnected. I think there was some internet problem. Hallelujah. So Revelation chapter number 1, candlestick on the earth, but in chapter 4, 7 candlesticks are burning before the throne of God. That means church has already raptured. कलीसिया परमेश्वर के चरणों में पहुंच चुकी है. हालेलुया. यीशु मसीह आया और कलीसिया को ले गया. और 4 अध्याय से 19 अध्याय तक जब आप पढ़ते हैं, आप दानियल की पुस्तक 9 अध्याय के 26 वचन में जो 70th वीक के विषय में लिखा है, सिर्फ आप वही देखते हैं. 7 साल के जो सताव आएगा, उस सताव के विषय में जो जो घटेगा, वो सब 4 अध्याय से 19 अध्याय के बीच में लिखा हुआ है. और 24 प्राचीन बैठे हैं, 7 लैंप जल रहे हैं, और चैप्टर नंबर 6 में एक सी ऑफ ग्लास है, कांच का समुंदर है. ये बड़ा अद्भुत विषय है, कांच का समुंदर, द ग्लासी सी. इसके ऊपर बड़ी गहरी शिक्षा है. ये ग्लासी सी क्या है भाई और बहनों? ये ग्लासी सी ट्रेडिंग फ्लोर है हेवन में. जैसे पृथ्वी पे आपके ट्रेडिंग फ्लोर है ना, स्टॉक मार्केट्स हैं मुंबई में और न्यूयॉर्क में हैं, जहाँ पे स्टॉक्स खुलते हैं, फाइनेंशियल सारा बिजनेस होता है हर राष्ट्र का. ऐसे हेवन में एक ग्लासी सी है. आपकी प्रार्थनाएं वहाँ पे लैंड करती हैं. और ये जो ग्लासी सी है, इसके ऊपर एल्डर खड़े हैं प्राचीन, और वचन में लिखा 4 जीवित प्राणी हैं जिन्हें जंतु कहा गया, इंग्लिश में बीस्ट कहा गया, लेकिन वो सही शब्द नहीं है. ये सुपर एंजल्स हैं, पारलौकिक सुपरनैचुरल एंजालिक होस्ट हैं. हालेलुया. आपको मालूम, ये जो 24 प्राचीन हैं, बुजुर्ग हैं, ये कौन है? हु आर दे? बहुत सारे लोगों की अलग अलग इंटरप्रिटेशन है कि 12 चेले हैं, 12 इसराइल के गोत्र हैं, लेकिन ऐसा कोई भी हवाला पूरी बाइबल में नहीं मिलता. मैं आपको चाहता हूँ आप अपनी बाइबल खोलें. इससे पहले कि हम समाप्त करें, मैं ये वचन आपको पढ़वाना चाहता हूँ. पहला इतिहास, 1 क्रॉनिकल्स 24 चैप्टर. पहला इतिहास उसका 24 अध्याय खोलिएगा. 1 क्रॉनिकल्स पहला इतिहास उसका 24 अध्याय निकालिए. हालेलुया. उसके पहले वचन से मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ. 1 Chronicles 24th chapter, beginning from verse number 1. It says, these were the descendants of Aaron, sons of Aaron, and then there is the list of the dynasty of Aaron, the priestly household of Aaron, all their sons and grandsons and great-grandsons. And then David is talking about, he's talking about 24 courses. God led supernaturally. That's how David got it. The 24 courses of priests to usher into the presence of God. 24 circles for the priestly
lineage that David talks about here. 24 वो जो आयाम हैं याजकों के, ये हैं 24 बुजुर्ग, ये रॉयल प्रीस्ट हैं, किंग हैं, हालेलुया। और आपको मालूम इनके सर के ऊपर क्राउन्स हैं। नो एंजल इन हेवन हैज अ क्राउन, नो वेयर इट इज मेंशन्ड पीपल हु सॉ एंजल्स, दे नेवर सॉ अ क्राउन ऑन देयर हेड। ओनली द रिडीम्ड विल हैव द प्रिविलेज टू हैव क्राउन्स। Paul talks about 5 kind of crowns. They could be literal crowns or they could be privileges that would be bestowed upon them. 3 things Jesus talks about. जो जय पाए, he that overcomes, जो वफादार and he that is faithful. जो जय पाए, जो वफादार है, और तीसरी चीज I'll catch it and I'll let you know. 3 बातें यीशु मसीह ने बोली कि जो ये करेगा उनको ये स्पेशल प्रिविलेज है। 5 किस्म के क्राउन, मुकुट उनको पहनने के लिए दिए जाएंगे, हालेलुया। तो मैं आपको फिर ये बताना चाह रहा हूं कि जो व्हाइट हॉर्स पे बैठा है वो आ रहा है। द वन हु इज सीटेड ऑन द व्हाइट हॉर्स, ही इज सुपर डिसीवर। ही विल डिसीव द पॉलिटिशियंस ऑफ द वर्ल्ड. He will deceive the economist. He will deceive the doctor and the scientists. He will deceive all the socialists. He will deceive all the philanthropists. He will deceive all the elite and the educated. He will deceive the entire media. He will deceive the educationist. He will deceive the whole system of the world. And he will even deceive the chosen Jewish people. उसकी आमद का समय हो रहा है और वो बहुत जल्दी वापस आ रहा है। लेकिन यीशु मसीह अपनी कलीसिया को उठाएगा। पर यीशु मसीह की कलीसिया के उठाए जाने से पहले भाई और बहनों, आपको मालूम कौन सी चीज़ बाकी है? एक जबरदस्त नहीं बाकी है। पवित्र आत्मा का जबरदस्त रूप से उंडेले जाना बाकी है। भारतवर्ष में आत्माओं की बड़ी कटनी काटी जाएगी। पवित्र आत्मा का एक जबरदस्त सैलाब आएगा। इस कोरोना वायरस के बाद, ये कोरोना वायरस धो रहा है, ये सजा लेके आया है, जजमेंट, सफाई हो रही है। इसके बाद एक बड़ी बेदारी आएगी और इसके बाद सेवकों की एक नई जमात परमेश्वर के लिए खड़ी की जाएगी, जो पवित्रताई का वचन सिखाएंगे, धार्मिकता का वचन सिखाएंगे, जो परमेश्वर के कलाम को बेचेंगे नहीं, जो अपने आप को फेमस करने के लिए, मशहूर करने के लिए, सेलिब्रिटी बनने के लिए, लोगों के दिलों में बसने के लिए बाबा जैसी बन के इमेज वाले नहीं होंगे। वो परमेश्वर के हम्बल सेवक होंगे जिन्हें परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। आपको मालूम आपको क्यों घरों में बिठाया गया? क्योंकि रूहानी आलम में कुछ नया हो रहा है। नेचुरल में तो आप कलामिटी देख रहे हैं, लेकिन स्पिरिट वर्ल्ड में भी कुछ नया हो रहा है। कुछ नए की तैयारी हो रही है, नए सीजन की, नई ऋतु आने वाली है पृथ्वी पे। हालेलुया। और उसके लिए परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है। 24 जो कोर्सेज हैं प्रीस्ट के, 24 एल्डर्स, वो स्वर्ग में हैं। वही कोर्सेज पृथ्वी पे हैं, लेकिन 24 एल्डर के कोर्सेज को भी कोई सुपरसीड करता है। इससे भी ऊपर की याजक की सेवा है, वो है मलकी सिदक की याजक की सेवा। हमें मलकी सिदक सरीखे याजक बनाया गया। उस याजकी सेवकाई के लिए परमेश्वर का आत्मा आह्वान कर रहा है। आइए हम अपने जीवनों को प्रभु को समर्पण करें। सब प्रभु से कहें, मुझे अपना याजक बना, सच्चा काहिन बना प्रभु। प्रकाशित वाक्या पे हम ऐसी बातें सीखेंगे। प्रकाशित वाक्य की 7 कलीसियाओं के विषय में भी मनन करेंगे। हिस्टोरिकली क्या उसके अंदर भेद हैं 7 कलीसियाओं के, और राइडर मोहरों के ऊपर उसको 7 मोहरें लगी, अंदर बाहर से बंद है। फिर बेबीलोन, 3 तरह के बेबीलोन हैं। मिस्ट्री बेबीलोन है, दूसरा बेबीलोन है
एक और बेबीलोन है, 3 बेबीलोन्स आर देयर इन, हम मनन करेंगे। अलग अलग जजमेंट हैं, वाइट थ्रोन जजमेंट है, मेमने की जजमेंट है। आपको मालूम 3 रॉथ हैं भाई प्रकाशित वाक्य में, 3 रॉथ, अर्थात तीनों का गुस्सा, यहोवा का गुस्सा, यीशु मसीह का गुस्सा और शैतान का गुस्सा। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय बहुत क्रिटिकल है। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में जो घटना लिखी है वो 23 सितंबर 2017 को पूरी हो चुकी है। तारों में आप ढूंढ सकते हैं, नासा की वेबसाइट पे भी मिलेगी आपको। और वो मत्ती 24:30 के अनुसार वॉज द साइन ऑफ द सन ऑफ मैन, वो पूरा हो गया वचन। उसके बाद आगे लिखा है कि सेकंड हेवन में एक घनघोर लड़ाई है जो अब चल रही है। माइकल एंड हिज कोहोर्ट्स आर फाइटिंग अगेंस्ट सैटन एंड हिज कोहोर्ट्स, और उसके बाद उसे गिरा दिया जाता है। पृथ्वी पे आएगा शैतान, लोगों का पड़ोसी बन के रहेगा। पृथ्वी पे बहुत बुरा समय आ रहा है। झूठे भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणियां ना सुनिए। यीशु मसीह सबसे बड़ा प्रॉफिट, उसकी भविष्यवाणी सुने। यीशु मसीह ने बोला लड़ाइयाँ, लड़ाइयों की अफवाहें। यीशु मसीह ने बोला तलवार, भूखमरी, भूकंप, अकाल, सुनामियाँ। यीशु मसीह ने कहा मनुष्यों के हृदय कांपेंगे। यीशु मसीह ने कहा आकाश में चिन्ह होंगे, सन फ्लेयर्स होंगी सूर्य में, रेड ब्लड मून होंगे, तारे गिरेंगे, मीट्रियोटिक शावर्स, एस्टेरॉयड आएंगे नीचे। यीशु मसीह ने कहा उनकी वजह से सुनामियाँ आएंगी पृथ्वी के ऊपर। और फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा फैमिन आ जाएगा। प्रकाशित वाक्य में जो 3rd हॉर्स है वो काला घोड़ा है और वो ऐसे तकड़ी लेके जा रहा है, बैलेंस। एक दिन की कमाई करके एक रोटी मिल रही व्यक्ति को, फूड शॉर्टेज आ रही है। मैं ऐसे वचन लिखता हूँ फेसबुक पे, लोग वो सोचते हैं बोलो बढ़िया वचन, बोलो अपने मुंह से, बढ़िया होगा। उनको ये नहीं मालूम कि आपके मुंह के वचन परमेश्वर की भविष्यवाणियों को कभी रद्द नहीं कर सकते। केवल मुंह के वचन बोलने से कुछ नहीं होता, जीवन अंदर से प्रभु के संग सही होना चाहिए। अगर जीवन सही है ना, तो यीशु मसीह कहता है तेरे मांगने से पहले तेरा पिता जानता है। तेरे को बोलने की भी जरूरत नहीं है शब्द, योर फादर नोज एवरीथिंग। शब्दों का बस गेम बना दिया कईयों ने, बोलो नेम एंड क्लेम, जैसे आब्रा का डाबरा। आब्रा का डाबरा एक कबलिस्टिक इनकांटेशन है, ये बाइबल से लिया गया वचन। डाबरा मीन्स द बार, हिब्रू में वर्ड, द वर्ड ऑफ गॉड, द बार, ठीक है। आब्रा का डाबरा विच मीन्स आई स्पीक एंड आई क्रिएट, what I speak I create. That's erroneous theology, not in sync with Jesus's word. Jesus talks about heart in proper place first, then the words. Bible does say that the power of life and death is in the power of tongue. Of course that is there, but Bible talks about, यीशु मसीह कहता है कि वो मुझे मुंह से प्रभु प्रभु कहते हैं पर उनके दिल मुझसे दूर है। भाई और बहनों, केवल आब्रा का डाबरा नहीं है। हालेलुया। हम अपना जीवन प्रभु को समर्पित करें, वो आ रहा है। अभी बहुत जल्दी जल्दी घटनाएं घटनी शुरू हो जाएंगी, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली, एजुकेशन सिस्टम में बदलाव आ जाएंगे। मेडिकल केयर के ऊपर बहुत एम्फोसिस हो जाएगा। बहुत बड़ा फैमिन क्राइसिस आ जाएगा, फैमिन फूड क्राइसिस आ जाएगा, फैमिन आएंगे और बहुत सी महामारियां आएंगी पृथ्वी के ऊपर। मनुष्यों का जीवन बद से बदतर होता जाएगा। आइए प्रार्थना करें भारत के लिए, विश्व के लिए। आंखें बंद करें। प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं एक बार फिर। वी प्रे फादर दैट योर स्पिरिट विल मूव इन इटली, that this devastation that is wreaking havoc and killing, butchering people, that there is lament, that it will cease, that you will pardon and save those lives, Father, even the lives of doctors and medical professionals. We pray for nations, Father, that are reeling under
this tremendous wrath. Even we pray for India. Protect people, Lord. Move, Lord. Use your people in this hour of crisis. हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु, तेरे नाम की देते हैं यीशु मसीह के जलाली नाम में, आमीन, हालेलुया। भाइयों बहनों, अपने लव्ड वंस को आप हमारी फेसबुक में जोड़िए, उन्होंने बताइए लाइव प्रोग्राम, हम प्रकाशित वाक्य और नबियों की पुस्तकों में से वचन करते रहेंगे, प्रार्थना करेंगे, अलग अलग देशों के लिए प्रार्थना करेंगे। कल इज़राइल के लिए प्रार्थना करेंगे और एक और कंट्री के लिए, स्पेन और इज़राइल के लिए कल हम प्रार्थना करेंगे और वचन मनन करेंगे। आप अपनी प्रार्थनाएं भी भेज सकते हैं, हमें मैसेंजर पे अपनी प्रार्थनाएं भेज सकते हैं, हालेलुया। कल हम 10:30 इकट्ठा होंगे और प्रभु भोज करेंगे कल दिन में। आप अपने अपने घर में प्रभु भोज लेके बैठ सकते हैं। 10:30 पे वील ऑल गैदर एंड हैव होली कम्युनियन, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्लीज़ टेल अदर्स टू ज्वाइन, प्लीज़ टेल अदर्स टू रिसीव द लिविंग वर्ड of the Most High God. Hallelujah. The Lord bless you all. यीशु मसीह के नाम में, आमीन, Shalom. Hallelujah. Trust Him. Trust Him. He is greater than any virus. Thank you.